بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک کی وہ رات شروع ہو چکی ہے جس میں تو اپنے بندوں کے نام پر رحمت لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے بند نہیں بلکہ سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین کی طرف اتر کر اعلان کرتے ہیں، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات حل کروانے والا۔ اے اللہ پاک، آج ہم اپنے دل کی ساری ٹوٹی پھوٹی کمزوریاں، ساری دعائیں تیرے سامنے تیرے حضور لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک، یہ رمضان کی رات ہے اور یہ دل کی پہلی فریاد ہے۔ اے اللہ پاک، آج سن لے، آج قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، آج ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے وہ گناہ گار بندے ہیں جو آج رات پر تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کے بھوکے ہو کر تیرے در پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک، آج کا یہ مجمع اس دعا میں جو جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ یہ رمضان کا چاند اس پوری امت پر اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو اور اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولنے والے پر رحمت، برکت، نور اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر طلوع کر دے۔ اے اللہ پاک، ہر گھر میں سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی یہ دعا ابھی چل رہی ہے، جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے دل کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس کے گھر میں کشادہ کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ اس کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے۔ اے اللہ اس کے گھر سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، حسد، ٹینشن، تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمارے روزے قبول فرما، ہماری سحریوں میں برکت، ہماری افطاریوں میں برکت شامل فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو مضبوط کر دے، ہماری تراویحوں میں برکت عطا فرما دے، ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا ذکر بسا دے، ہماری زبانوں کو تیری یاد سے آباد کر دے، ہمارا ہر قدم خیر اور نور کی طرف ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جن بہن بھائیوں کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اے اللہ پاک جن کے گھر کے افراد قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ جن کا کاروبار ڈوب چکا ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اے اللہ پاک اس رمضان کی برکت کے صدقے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے، ان کے گھروں میں دولت کی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، وسیع وسیع رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو بھائی بہن رشتوں کے انتظار میں ہے، اے اللہ شادی کے انتظار میں ہے، اے اللہ پاک جو سچے دل سے اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام دعائیں قبول فرما، ان کی تمام رکاوٹیں دور فرما، ان کی تمام قسمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان کی قسمتوں کے دروازے کھول دے، ان کے لیے بہترین رشتے مقدر فرما دے، ان کے دلوں میں سکون اور محبت پیدا فرما دے، ہر گھر کی لڑائی، نفرت، بدگمانی ختم فرما دے۔ یا شافی، جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کے گھر والے تکلیف میں ہیں، ان کو مکمل شفا عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی حالت بہتر کر دے۔ اے اللہ جو ظلم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، پتہ نہیں اس رمضان کے بعد ہمیں اگلا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس دعا کے بعد میں اگلی دعا کر سکوں گا یا نہیں۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، جتنی بھی مہلت باقی ہے، جتنی بھی سانسیں باقی ہیں، اے اللہ پاک اس دعا کے صدقے، اس رمضان المبارک کی چاند رات کے صدقے، اے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والی زبان عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والا ذکر عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والے قدم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ قدم عطا فرما جو تیرے گھر کی طرف جاتے ہوں۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، تیرے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اے اللہ بے شمار لوگ اس مہینے میں بھی عمرے پر گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مہینے میں بھی عمرے پر جائیں گے۔ اے اللہ پاک اس کے بعد حج کا مہینہ آئے گا، تیرے بہت سارے لوگ حج کے اوپر بھی جائیں گے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، مجھے اور اس دعا کو جو جو ابھی جہاں جہاں سے سن رہا ہے، اس سال میں اسے حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اسی سال میں ہمیں حج اور عمرے کی بے شمار سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اے اللہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جسے لوگ دعائیں کر کر کے مانگتے ہیں، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک بڑی حسرت تھی اس مہینے کی، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ خصوصاً ان کی اس رمضان کے صدقے بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما دے، تمام مسلمانوں کو اتنا رزق عطا کر اے اللہ پاک کہ ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اے اللہ پاک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے
महीने में न बख्शे गए तो फिर कब बख्शे जाएंगे। अल्लाह पाक इस महीने में तूने हमारी हाजतों पर कुन का हुक्म ना फरमाया तो फिर कब फरमाएगा। अल्लाह मुझे पता है कि तेरे इस रमजानुल मुबारक वाले बरकतों वाले महीने में तू अपने सारे बंदों की सारी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था इस महीने का। अल्लाह पूरे 11 माह के बाद हमें ये महीना नसीब हुआ। या रब्बल आलमीन इस रमजानुल मुबारक में हमें सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक इस रमजानुल मुबारक को हमारे लिए अदब और एहतराम के साथ गुजारने वाला बना दे। अल्लाह रहमतों के इस महीने में खूब रहमतें समेटने वाला बना दे। अल्लाह इस रमजानुल मुबारक को हमारे लिए ऐसा रमजान बना दे कि इसके बाद जिंदगी में हमसे कभी कोई गुनाह ना हो। अल्लाह पाक इस रमजानुल मुबारक के बरकत महीने में हम सब की अधूरी ख्वाहिशात को मुकम्मल कर दे। अल्लाह इस रमजानुल मुबारक में तू हम सब से राजी हो जा। ऐ पाक परवरदिगार इस रमजानुल मुबारक में तू हम सब से राजी हो जा। अल्लाह इस रमजान में इन तमाम बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा दे। ऐ रब्बे काबा इस रमजानुल मुबारक में तमाम बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा दे। अल्लाह पाक इस बरकत और रहमतों वाले महीने में हम सब पर अपनी रहमत की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। अल्लाह इस रमजानुल मुबारक के बरकत महीने में हम सब की चाहतों पर कुन का हुक्म फरमा दे। अल्लाह इस रमजानुल मुबारक के बरकत महीने से हमारे वालिदैन की तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह इस रमजानुल मुबारक में जिन जिन के वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह पाक तेरे रूबरू पेश हो चुके हैं, इनकी मगफिरत कर दे, इन्हें बख्श दे, इन्हें जन्नत का हकदार बना दे, इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जिन जिन का मैंने इस दुआ में पहले नाम लिया, ऐ अल्लाह बिलखसूस उनको इस दुआ का सवाब पहुंचा दे, उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ऐ अल्लाह जो इस दुनिया फानी में अभी मौजूद है, ऐ अल्लाह पाक इन्हें सेहत याब जिंदगी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक इनको हर कदम पर नेकियां करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह पाक जिनके वालिदैन अभी हयात हैं, इन पर अपनी रहमत की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। ऐ अल्लाह इन्हें सेहत याब जिंदगी अता फरमा दे, इनकी तमाम परेशानियों को खुशियों में बदल दे। ऐ अल्लाह पाक इनके साथ वो तमाम मामलात फरमा जो तू अपने करीम बंदों के साथ नेक बंदों के साथ फरमाता है। ऐ अल्लाह पाक इनको वो तमाम खुशियां देखना नसीब फरमा जिसके वो अभी इंतजार में है। ऐ अल्लाह पाक इनकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। ऐ परवरदिगार हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह बचपन में इन्होंने हम पर रहम फरमाया, हमारी परवरिश की, हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम इनके लिए तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांग सके। ऐ अल्लाह पाक हमें दीन का जज्बा अता फरमाया, हमें तेरा कुरान पाक पढ़ना सिखाया, हमें नमाज का तरीका बताया। ऐ अल्लाह जिस तरह इन्होंने हम पर करम फरमाया, तू भी इन पर करम फरमा दे। ऐ अल्लाह जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए परेशान है, बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए जैसे परेशान है, ऐ अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके इन्हें नेक रिश्ते अता फरमा दे, इनकी बेटियों बेटों के नसीब खूबसूरत कर दे। जो लोग बे औलाद हैं, ऐ अल्लाह जो अभी अभी बे औलाद जोड़े हैं और वो इस दुआ में शामिल हैं, ऐ अल्लाह जितने भी इस दुआ में अभी बे औलाद जोड़े शामिल हैं, जितनी भी मेरी बहनें भाई इस दुआ में शामिल हैं, ऐ अल्लाह अगर वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, ऐ अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके, इस मुबारक रहमतों वाले महीने के सदके उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो लोग बीमार हैं, लाचार हैं, तू सबसे बड़ा तबीब है, उनको शिफाए कामला नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इन पर अपनी रहमत की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। अल्लाह पाक तमाम घरों में खुशहालियां पैदा कर दे, हमारे घरों से ना इत्तफाकियां, घरेलू नाचाकियां, लड़ाई झगड़े, रिज़्क़ की तंगियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक हमारे घरों में चारों तरफ से रिज़्क़ के दरवाजे खोल, हलाल रोजी के दरवाजे खोल। अल्लाह पाक बाबरकत महीना खैर और आफियत के साथ ये रमजानुल मुबारक 2026 हमारे लिए ऐसा महीना बना दे कि इस जैसा रमजान हमारी पिछली जिंदगी में कभी ना आया हो। अल्लाह इतना बाबरकत महीना बना दे, इस रमजान में हमें लोगों को नहीं सिर्फ तुझे राजी करना है। अल्लाह इस रमजानुल मुबारक में हमें कोई दिखावा नहीं करना, सिर्फ तुझे राजी करना है। अल्लाह ऐसा बना दे कि हम छुप छुप कर इबादत करें, तहज्जुद गुजार बन जाएं। अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता हम सब से राजी हो जा। इस रमजान में हम सब के रोजे कबूल फरमा ले। इस रमजान में अभी जो हमने रोजे रखने हैं उन तमाम रोजों को अभी से कबूल फरमा ले, तरावियां कबूल फरमा ले, नमाजें कबूल फरमा ले, जिक्र अज़कार जो भी हम करेंगे अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमा ले। अल्लाह इस रमजान में हम सब पर अपनी रहमत की बारिश कर दे। अल्लाह हम सब के रोजे दुआएं जो जो काम हम नेक इस रमजानुल मुबारक में करेंगे वो तमाम दुआएं, वो तमाम नेक जिक्र अज़कार कबूल और मंजूर फरमा ले। वो तमाम हाजतें, वो तमाम मुरादें भी कबूल फरमा ले। उन तमाम हाजतों, उन मुरादों पर कुन का हुक्म फरमा दे जो हम हर दुआ में तुझसे कर रहे हैं। अल्लाह पाक जो भी हमारी मुरादें हैं, जो भी हमारी हाजतें हैं, वो हमारी तमाम दुआएं, तमाम मुरादें, तमाम हाजतें इस मुबारक महीने के सदके कबूल और मंजूर फरमा ले। अल्लाह हमने रमजान में जो भी अपनी प्लानिंग की है, अल्लाह जिस तरह भी हमने इस महीने को गुजारने के लिए तरतीब बनाई है उसी तरह इस बाबरकत महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह देख इधर मेरी तरफ, अल्लाह तू नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा। अल्लाह हम
गुनाहगारों को देख, हम बदकारों को देख, हम तेरी बारगाह में गंदे गंदे हाथ उठाकर ऐ अल्लाह गुनाहों से भरे हुए हाथ ऐ अल्लाह शर्मिंदा आंखों को झुकाए नदामत के साथ तेरे से दुआ मांग रहे हैं, तुझे राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इस रमजान को शुरू होने से पहले पहले आज इस चांद रात में तू हम सबसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह इस दुआ में सबके उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ से भी जिसने भी इस दुआ में भी हाथ उठाए हुए हैं, ऐ अल्लाह तुझसे जो कुछ भी मांग रहा है ऐ अल्लाह इसे अता कर दे। ऐ अल्लाह हमें मांगने का तरीका नहीं आता, ना तुझे मनाने का तरीका आता है। ऐ अल्लाह हम फिर भी तुझसे दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह तुझे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं। ऐ अल्लाह आज हम सबसे राजी हो जा। ऐ पाक परवरदिगार, ऐ रब्बे जुल जलाल, जो कायनात में तुझे सबसे ज्यादा अजीज है वो मेरा नबी है, वो मेरा प्यारा है। ऐ अल्लाह पाक मैं उस नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गधा हूँ। ऐ अल्लाह जो हमारे प्यारे आका ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनाहगारों के लिए तेरे सामने शबे मेराज की रात आंखों से आंसू बहाए थे। इन मुबारक आंसुओं का वास्ता तुझे, इन मुबारक आंसुओं की कसम हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। ऐ अल्लाह जो जो इन लम्हात में नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं ऐ अल्लाह उनकी नमाज़े तहज्जुद कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो हाजत के नफल पढ़ रहे हैं ऐ अल्लाह उनकी हाजतें कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो रो रो कर तेरी बारगाह में तुझसे फरियाद कर रहे हैं ऐ अल्लाह उनकी फरियादें कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये रमजान का मुबारक महीना हमें तोहफे में तूने दिया है। ऐ अल्लाह ये तोहफा हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए लिख दे। ऐ अल्लाह जितनी भी सांसें बाकी हैं ऐ अल्लाह जितनी भी लम्हे बाकी हैं ऐ अल्लाह जितनी भी घड़ियां बाकी हैं ऐ अल्लाह जाने अनजाने में जितनी भी पिछली जिंदगी में सगीरा कबीरा गुनाह हो गए ऐ अल्लाह सबको माफ कर दे। ऐ अल्लाह आज हम सब मुसलमान बहन भाई जो जो इस दुआ में शामिल है बस इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि सिर्फ तू हमारा रब है, तू हमारी फरियादों को सुनने वाला है, तू हमारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। ऐ अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस दुआ में जो जो रोजेदार शामिल है ऐ अल्लाह उसके रोजे की लाज रख ले। ऐ अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता उसकी हुश्क ज़बान की लाज रख ले, हुश्क गले की लाज रख ले। ऐ अल्लाह वो उसने तेरे लिए रोजा रखा, ऐ अल्लाह उसकी जितनी भी दुआएं हैं आज ऐ अल्लाह रोजा खुलने से पहले पहले कबूल और मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता ये तेरी वो उम्मत मुस्लिमा है जिसने तेरे हुक्म पर पूरा दिन भूखा रहकर सिर्फ तेरी रजा के लिए रोजा रखा। ऐ अल्लाह तेरे सामने हाथ उठाकर तेरा वही बंदा, तेरी वही बंदी तेरी बारगाह में हाजिर है। ऐ अल्लाह इसके चेहरे की थकन भी गवाह है, ऐ अल्लाह इसकी भूख भी गवाह है, ऐ अल्लाह इसका सब्र का हर लम्हा भी गवाह है। ऐ अल्लाह इसके इर्द गिर्द मौजूद फरिश्ते भी इस चीज के गवाह हैं कि उसने तेरे लिए रोजा रखा, तुझे राजी करने के लिए रोजा रखा। ऐ अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि तू उसकी फरियादों को सुनेगा, ऐ अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि तू उसे बख्श देगा, ऐ अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि उसके तू सारे गुनाह माफ करेगा, ऐ अल्लाह इस उम्मीद के साथ पता नहीं वो अगला रमजान देख पाएगा या नहीं। ऐ अल्लाह जो मौका तूने हमें नसीब फरमाया ऐ अल्लाह मेरे समेत इस दुआ में जो जो जहां जहां से शामिल है ऐ अल्लाह पाक तू उसका नाम भी जानता है, तू उसका काम भी जानता है, तू उसकी परेशानियां भी जानता है, तू उसकी हाजतें भी जानता है, तू उसकी मुश्किलात भी जानता है, तू उसकी बीमारियां भी जानता है। ऐ अल्लाह आज इन सब को नवाज दे, इन सब को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह इन सब की आज अजान मगरिब होने से पहले पहले तमाम हाजतों पर कुल का हुक्म फरमा दे। ऐ अल्लाह रोजेदारों की अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। ऐ अल्लाह ये वो वक्त है जिसमें तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तेरा हर बंदा तुझसे अपनी हाजतों की दरियाफ्त करता है, तुझसे अपनी मुश्किलात के बारे में तुझे बताता है। ऐ अल्लाह ये वो वक्त होता है कि रोजे के वक्त जो दुआ मांगी जाती है, अफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाती है उसकी दुआ कबूल होती है। ऐ अल्लाह आज देख ले इस दुआ में कितने तेरे रोजेदार शामिल हैं। ऐ अल्लाह आज देख ले इस दुआ में कितने तेरे बेरोजगार शामिल हैं। ऐ अल्लाह आज देख ले इस दुआ में कौन कौन कहां कहां से शामिल है। ऐ अल्लाह आज सबकी दुआ कबूल फरमा ले, सब रोजेदारों की तमाम दुआएं कबूल फरमा ले, सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज हम वही हैं जो दुआ मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह आज हम वही हैं जो रोजाना तेरे बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे फरियाद करते हैं। ऐ अल्लाह आज हम वही दुआ मांग रहे हैं जिसे कबूल करने के लिए आसमान के दरवाजे भी तो खोल देता है। ऐ अल्लाह पाक की रफ्तारी से पहले पहले ऐ अल्लाह आज हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले।